میری عمر 11 سال تھی، مگر میں دیکھنے میں ایک 20 سال کی جوان اور انتہائی حسین ترین لڑکی لگتی تھی۔ ہمارے گاؤں کے چودھری اور ساتھ والے گاؤں کے نواب صاحب نے مجھے دیکھا تو دونوں ہی مجھ پر عاشق ہو گئے تھے۔ ان دونوں کا اسی بات پر جھگڑا ہو گیا، وہ دونوں ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس جھگڑے میں کئی لوگ مارے گئے تھے۔ ایک روز نواب صاحب کے بندے مجھے اٹھا کر لے گئے۔ اس رات تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں وہ رات کیسے بھول سکتی ہوں جب شام کے 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک ابا کے چہرے پر خوف ہی خوف تھا۔ اس خوف کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ گئی تھی کہ آج ضرور گھر میں کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ابا بار بار دروازے کو کنڈی لگاتے اور کبھی اپنے آپ کو دیکھتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابا اپنی طاقت کو آزما رہے ہوں، جیسے ابا جانتے ہوں کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تبھی میں نے دیکھا ہمارے گھر کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ ابا چیخ کر اماں سے بولے، زینب بیٹی کو اندر لے جاؤ، کپڑوں والی پیٹی میں چھپا دو۔ یہ کہہ کر ابا نے مجھے اماں کی طرف بھیج دیا تھا۔ اماں مجھے پکڑ کر سیدھا اندر کمرے میں لے گئی تھی اور کپڑوں والی پیٹی میں چھپا کر بولی، یہاں سے ہلنا مت اور سانس لینے کی بھی آواز باہر نہ آئے ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہے، لیکن پھر جب تھوڑی ہی دیر کے بعد بوٹوں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں سمجھ گئی کہ واقعی میری اور میرے ماں باپ کی جان کو خطرہ ہے۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی اور پھر ایک وحشت ناک چیخ جو کہ شاید اماں کی تھی۔ ان لوگوں نے ہمارے گھر کے قیمتی برتن بھی توڑ دیے تھے، ابھی ہمارے گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ امی نے مجھے مہارت سے ایسی جگہ پر چھپایا تھا جہاں خوش قسمتی سے یہ لوگ نہیں پہنچ سکے تھے۔ وہ بھوکے کتوں کی طرح ابا سے پوچھ رہے تھے کہ تمہاری بیٹی زینب کہاں ہے؟ ابا نے مجھے چھپا دیا تھا۔ ابا بولے، میں نہیں جانتا کہ زینب کہاں ہے، وہ ڈر کر یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ وہ آدمی ابا پر دھاڑتے ہوئے بولا، بڈھے ہمیں بے وقوف مت بنا، وہ 11 سال کی لڑکی کہاں جا سکتی ہے، تو نے ہی اسے کہیں چھپایا ہوگا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس پیٹی سے نکل آؤں اور اپنے ابا کو بچا لوں، پر میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا، مگر ابا کچھ نہیں کر پائے تھے اور پھر وہ گنڈے لوگ وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے کچھ لمحوں کے بعد ابا پرسکون ہو کر بیٹھے اور اماں سے کہنے لگے، بس وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے، تم فکر نہیں کرو، اس کے بعد ہمیں اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہوگی۔ یہ چودھری خود کو سمجھتا کیا ہے، میں نے اس کی جڑیں نہ کاٹی تو تم میرا نام بدل دینا۔ اماں یہ باتیں سن کر اور زیادہ رو رہی تھی۔ ابا کو پتا تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے، لیکن ہم سبھی خاموش تھے۔ پھر اماں نے مجھے اس پیٹی سے نکالا اور بولی، بیٹی تو نے گھبرانا نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں تیری حفاظت، خوشی اور بھلے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اماں نے مجھے ایک خوبصورت سا جوڑا پہنایا تھا اور مجھے منہ دھلوا کر تیار کرنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اماں ایسا کیوں کر رہی ہیں، حالانکہ یہ رات کا وقت تھا اور رات کو اماں مجھے اپنے پاس سونے کا کہتی تھی، پر آج وہ مجھے تیار کر رہی تھی جیسے کسی دلہن کو سجایا سنوارا جاتا ہے۔ میں ویسے ہی تیار ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھے دلہن بنایا اور پھر تقریباً 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ گھر کے دروازے پر پھر سے دستک ہوئی تھی۔ ابا پرسکون ہو کر باہر گئے۔ دروازے کو کھولا تو سامنے 4 آدمی کھڑے تھے۔ ابا نے انہیں دیکھ کر اندر آنے کو کہا۔ اماں نے مجھے چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ میں چارپائی پر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اماں بولی، اب تو اس پر لیٹ جا اور ہاں تب تک نہیں اٹھنا جب تک یہ لوگ تمہیں کہہ نہ دے۔ اماں تم مجھے کہاں بھیج رہی ہو، یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے اماں سے خوف زدہ نگاہوں سے پوچھا۔ اماں نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بولی، سوال نہیں کرنا میری بیٹی، بس تو جہاں جا رہی ہے میں تیرے بھلے کے لیے ہی تجھے وہاں بھیج رہی ہوں۔ اماں نے مجھے چپ کروا دیا اور پھر مجھے اس چارپائی پر لیٹنے کو کہا۔ وہ آدمی جو کہ چاروں ہی نقاب پوش تھے، انہوں نے چارپائی کو ایک ایک کونے سے اٹھا لیا۔ میں ابھی چیخنا چاہتی تھی پر مجھے وقت سے پہلے ہی عقل آ گئی تھی۔ میں جانتی تھی اب چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس چودھری کو اگر پتہ چل جائے گا تو میں یہاں ہوں تو پھر میری زندگی اجیرن کر دے گا۔ دراصل چودھری الیاس نے مجھے آج سے تقریباً 1 مہینے پہلے اپنے کھیتوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی غلیظ نگاہیں سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لے رہی تھی۔ میں ایک قد والی اور انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ میری عمر 11 سال تھی پر میں 18 یا 20 کی لگتی تھی۔ میرے پاس آ کر وہ کہنے لگا، مجھے پتا ہوتا کہ اس گاؤں میں اتنے ہیرے ہیں تو میں اسے اپنی سلطنت بنا لیتا اور تجھے اپنی لونڈی۔ میں اس کی اس بات پر حیران رہ گئی۔ لونڈی اور کنیز کی باتیں تو میں کہانیوں میں پڑھ چکی تھی، یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے یہ بات جا کر اماں کو بتا دی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ پھر اس بات کا نتیجہ 1 ہفتے کے بعد نکلا تھا۔ ایک شام جبکہ اماں، ابا اور ہم سب پرسکون ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اور چودھری الیاس ہمارے گھر آیا تھا۔ ہم نے اس کا استقبال کیا۔ وہ میرے باپ کی عمر کا تھا۔ بس یہی سوچ کر میں نے اس کے سامنے چائے پانی رکھا تھا، پر اس کی نظریں کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ابا سے کہنے لگا، دیکھ شریف، تو مجھے اپنی بیٹی دے دے، میں اس سے نکاح کروں، یہ اسے اپنی لونڈی بنا لوں، یہ میرا کام ہوگا۔
हाँ, इसके बदले में जितनी जमीनें चाहे तुम मुझसे ले सकता है। अब्बा चौधरी की बात सुनकर दंग रह गए थे। चौधरी साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मेरी बेटी क्यों चाहिए? पहले तो अब्बा ने सोचा कि शायद अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहा है, पर उसके बेटे की उम्र भी 30 साल थी। लेकिन अब्बा उस वक्त दंग रह गए जब उसने अपना रिश्ता मेरे लिए मांगा था। मुझे बहुत हैरत हुई थी और अब्बा तो जैसे जमीन पर साकत होकर रह गए थे। चौधरी अलियास, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप भी बेटियों वाले हैं। मेरी ज़ैनब तो अभी फूल सी है, इसकी तो उम्र भी अभी 11 साल है। इस बात पर वो ढिठाई से बोला, तो कोई बात नहीं, तू बस इसे मुझे दे दे, मैं इसे फूलों की तरह रखूंगा। अब्बा चौधरी साहब की बात सुनकर गुस्से में आ गए। एक गरीब आदमी का गैरत दिखाना इतना आसान नहीं होता, पर अब्बा ने फिर भी उसके सामने गैरत का मुजाहरा किया और बोले, मैं अपनी बेटी तुझ बुढ़े को नहीं देना चाहता। तुझे शर्म नहीं आती? हवस के पुजारी लोगों की बेटियों पर गलत नजर रखते हो। तुमने पहले ही 3 शादियां की हैं, पर अभी भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। मेरी मासूम बच्ची में तुमने क्या देख लिया कि तुम इसके पीछे ही पड़ गए हो? खुदा के लिए मेरे घर से चले जाओ। ये सुनकर वो भी गुस्से में आ गया। तुमने चौधरी अलियास से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगे। पहले मैं तुम्हारी बेटी इज्जत से मांग रहा था, पर अब मैं इसे जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। ये सुनकर अब्बा को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। वो डर भी गए थे। अगरचा उन्होंने अपनी बीवी और बेटी के सामने उस शख्स को तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं जान गई थी कि अब्बा को ये सब अच्छा नहीं लगा और वो अम्मा को भी मोहतात रहने का कह रहे थे। इसके बाद तकरीबन 1 महीना हमें चौधरी धमकियां देता रहा, कहता रहा कि अपनी बेटी मुझे दो वरना अच्छा नहीं होगा। अब्बा हर बार इनकार करते रहे, पर अब अब्बा गहरी सोचों में गुम रहते। 2-2 दिन गांव से बाहर चले जाते। वो न जाने किससे मिलने जाते थे। ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी। फिर जब वो घर आते, अम्मा को हमेशा उम्मीद दिलाते और कहते कि चौधरी की मोहलत खत्म होने से पहले ही मैं कुछ ऐसा करूंगा कि हमारी बेटी हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। पर मैं नहीं जानती थी कि अब्बा मेरे लिए क्या करने वाले हैं। मैं तो बस कबूतर की तरह आंखें बंद करके बिल्ली के जाने का इंतजार कर रही थी। तभी एक रात ये वाकया हो गया और फिर मुझे वो नकाबपोश आकर चारपाई में उठाकर मेरे घर से ले गए थे। मैं खामोश थी। मैं जानती थी कि अब्बा मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते। माँ बाप हमेशा औलाद का भला ही सोचते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि अपने फायदे की खातिर अपनी औलाद को नुकसान पहुंचा दे। बस मैं इसी बात पर मुतमईन थी। फिर वो आदमी मुझे उल्टे सीधे रास्तों से घुमाते हुए न जाने कहां लेकर जा रहे थे। मेरा नाजुक सा वजूद चारपाई पर झटके खा रहा था। मैं सोच रही थी कि आखिर अब्बा ने मुझे इन लोगों पर भरोसा करके इतनी दूर कहां भेजा है। तभी ये लोग एक दूसरे से बातें करते हुए कहने लगे, हम बहुत थक गए हैं, ऐसा करते हैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, थोड़ा ताज़ा दम होकर फिर आगे चलेंगे। उनमें से एक आदमी चीखते हुए बोला, तुम होश में तो हो? तुमने बड़े साहब की अमानत उठा रखी है, अगर इसे कुछ हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। अरे मुन्नी, तुम परेशान ना होना। 2 आदमियों ने चारपाई को नीचे जमीन पर रखते हुए कहा था। मैं नहीं समझी थी कि ये लोग मुझे इतनी मोहब्बत और एहतराम से क्यों लेकर जा रहे हैं। क्या वाकई अब्बा ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा था? ये सोची मेरे जहन में मुसलसल गर्दिश कर रही थी। उन लोगों ने दरिया के किनारे चारपाई रखी। मैं भी उठकर बैठ गई थी। अब मुझे ये सब लोग बिल्कुल भी बुरे या फिर गैर महफूज नहीं लग रहे थे। जाहिर है मेरे अब्बा ने मुझे इनके साथ भेजा था। कोई तो इसमें हिकमत होगी। उनमें से 2 नकाबपोश मेरे साथ रुके और बाकी दरिया पर चले गए। शायद ये लोग हाथ मुंह धोने गए थे। फिर मैंने देखा ये लोग दरिया के किनारे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि नमाज पढ़ने वाले लोग बुरे नहीं हो सकते। फिर मैं क्या जानती थी मेरी जिंदगी में आगे क्या लिखा है, कितना कर्ब और कितना दर्द लिखा है। थोड़ी देर के बाद ये लोग फारिग होकर आए और कहने लगे, अगर तुम यहाँ पर परेशान नहीं हो रही तो हम एक मछली पकड़कर उसका शिकार करके उसे पकाते हैं। तुम खाओगी क्या? मैंने नफी में सर हिला दिया। अगरचे ये लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे, पर फिर भी मैं किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। मैंने नफी में सर हिला दिया। दूसरे आदमी ने पहले को इशारा किया और बोला, देखा तुमने, ऐसे तो इस खानदान की इतनी तारीफें नहीं होती। ये लोग बहुत खुददार किस्म के लोग हैं। मैं उनकी बातें नहीं समझी थी। बहरहाल 10 मिनट के बाद वो चारपाई दोबारा चल पड़ी। मैं भी पहले की तरह आराम से लेट गई। अब तो मुझे आदत हो गई थी। ये लोग दरिया का पुल पार करने लगे तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने चारपाई को खींचकर पकड़ रखा था। लगता था जैसे मैं अभी यहाँ से नीचे गिर जाऊंगी। दरिया पार करके जैसे ही ये लोग दूसरी तरफ आए, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा गाँव बहुत दूर रह गया था। मेरी आंखों से बेअख्तियार आंसू गिरने लगे थे। अंधेरी रात में मुझे बहुत डर भी लग रहा था और अम्मा अब्बा की नरम आगोश याद आ रही थी। काफी देर के बाद वो लोग मुझे एक जगह पर ले आए। मैं जिस जगह पहुंची थी वो बहुत ही अलग और पुरसकून सी थी। एक बड़ी सी हवेली पर मेरी नजर पड़ी, जहां पर रोशनियों से जगमगाती हर चीज थी। हवेली के शानदार दरवाजे पर मुझे उतारा गया था। चारपाई से मैं उतरी ही थी कि आसपास शोर शुरू हो गया।
छोटी छोटी लड़कियां खुशी से मेरी तरफ बढ़ी थी। ये तकरीबन 3-4 लड़कियां थीं। उनके पीछे पीछे एक बड़ी उम्र रसीदा औरत आ गई जो तकरीबन उम्र में 40 साल की लगती थी। उसने मुझे देखा तो बोली, आ गई हो बेटी, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे कदम इस हवेली में बहुत ज्यादा मुबारक साबित होंगे। मैं तुम्हारे वालिद को जानती हूँ, बड़े ही शरीफ और नेक इंसान हैं। ये कहकर उस औरत ने मुझे हाथ से पकड़ा और अंदर कमरे में ले गई। मैंने देखा कि उस कमरे में 2 बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे। पर्दे के एक तरफ मुझे बिठाया गया, जबकि दूसरी तरफ जाने कौन था ये मैं नहीं जानती थी। औरत कहने लगी, बेटा अब तुम्हारी शादी होने जा रही है, वो भी एक बहुत ही आला नस्ब के इंसान से। अब तुम्हें जो भी कहा जाए बस उस पर तुमने अपना सर हिला देना है। मैं मासूम सी थी। अम्मा अब्बा की तरबियत भी ऐसी थी कि मैंने कभी किसी बात पर बड़ों को ना नहीं की थी। और फिर जिन लोगों के साथ अब्बा ने मुझे भेजा था, यकीनन वो बुरे तो नहीं हो सकते थे। मुझे अजीब तो लगा था, पर फिर भी मैंने हाँ कह दी। मैंने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। 11 साल की उम्र में मेरी शादी की जा रही थी। जाहिर है मुझे अजीब भी लगना था, मैं डर भी रही थी। फिर मुझे पर्दे के सामने बिठा दिया गया। फिर मेरा निकाह किसी शख्स से पढ़ाया गया था। मैं ये नहीं जानती थी कि वो कौन है, मुझसे क्या चाहता है और क्यों एक आम सी झोंपड़ी में रहने वाली लड़की को इस बड़ी हवेली में ले आया था। मेरा निकाह कर दिया गया और फिर वही औरत मुझे उठाकर दूसरे कमरे में ले गई। यहाँ एक शानदार रेशमी बिस्तर बिछा हुआ था। वो बोली कि तुम इस पर सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। अभी रात बहुत ज्यादा हो गई है, अगर कोई तमाशा होगा तो देखा जाएगा। मैं उस कमरे में जाकर बैठी ही थी कि एक शोर शराबा हवेली के दरवाजे पर होने लगा था और फिर धमाकेदार आवाजें आने लगी। लगता था जैसे 2 ग्रुपों की लड़ाई हो रही हो। वो औरत दरवाजा बंद करके दोबारा मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, बेटी तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, हमारे कुछ दुश्मनों ने हमारे घर पर हमला कर दिया है। ये बाहर मर्दों का काम है, वो देख लेंगे। उन्होंने हम औरतों पर आज तक कोई आंच नहीं आने दी। वो औरत मुझे समझा रही थी और मैं खुद को अभी तक गैर महफूज तस्वुर कर रही थी। पर अब तुम एक बहुत बड़े इंसान के निकाह में आ चुकी हो जो कि आला हस्ब नस्ब से ताल्लुक रखता है। ये कहकर उस औरत ने मुझे प्यार किया और कहा, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कुछ हुआ तो तुम्हें बता दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैं सो गई। सुबह उठी तो वो औरत वहाँ पर मेरे साथ ही लेटी हुई थी। कहने लगी कि चलो तुम्हारे अब्बा तुमसे मिलने आए हैं, वो तुमसे मिलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और वो तुम्हें कुछ बताना भी चाहते हैं। मैंने कहा, ठीक है। मैं बहुत खुश हो गई कि अब्बा मुझसे इतनी दूर से मिलने आए हैं। मैं बाहर गई तो अब्बा बड़े से कमरे में बैठे हुए थे। उनका सर झुका था और वो बहुत मुतमईन थे। मुझे देखते ही मेरे करीब आ गए, मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे साथ बैठ गए। फिर बोले, मेरी प्यारी बेटी कि मैंने तुम्हें बताए बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया, पर मुझे इतना मालूम है मेरी बच्ची मुझे शर्मिंदा नहीं करेगी। तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। जो मैंने कहा था वैसा ही हुआ है। तुमने इन लोगों के सामने बदतमीजी ना करके मेरे लिए बहुत बड़ी आसानी कर दी। बेटा मुझे तुमसे इतनी सी उम्र में इतनी तवक्का नहीं थी कि तुम मेरी तरबियत का इतना मान रखोगी। मैं अब्बा के पास बैठी थी। अब्बा मुझे प्यार किए जा रहे थे। कभी अब्बा मेरे सर पर बोसा देते तो कभी खुश होकर मुझे गले लगा लेते। मैंने कहा, अब्बा ये कौन लोग हैं जिनके साथ मेरी शादी हुई है? अब्बा बोले, बस बेटा तुम्हारी शादी जिससे हुई है उसका नाम नवाब सलीम है और वो वाकई एक अजीम इंसान है, तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। इस हवेली का वो वाहिद मालिक है। अब्बा कहने लगे कि अभी मुझे वापस जाना होगा क्योंकि चौधरी अलियास पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। उसे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं छुपा रखा है। घर में आकर उसने पूरे घर की तलाशी ली है। तुम्हारी माँ को भी बहुत बातें सुना रहा था, कह रहा था कि तुम जहाँ भी होगी वो तुम्हें ढूंढ लेगा, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। उसकी तबीयत नवाब सलीम ने साफ कर दी है। नवाब सलीम के लिए तुम जिंदगी मौत का मसला हो क्योंकि तुम उसकी इज्जत बन चुकी हो। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, जब तुम अपने शोहर को देखोगी तो तुम्हें मेरा फैसला बुरा नहीं लगेगा। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे पर मैं खामोश बैठी रही थी। मैंने किसी किस्म के दुख का इजहार नहीं किया था। मैं अब्बा को परेशान नहीं करना चाहती थी। अब्बा हवेली से चले गए थे। औरत दोबारा मेरे पास आई और बोली, तुम जाकर गुस्ल खाने में नहा लो, तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हें अरूसी जोड़ा पहनाना है। औरत की बात सुनकर मैं जाकर नहा धोकर तैयार हो गई। उसने मुझे सुर्ख रंग का जोड़ा पहना दिया और बोली, आज तुम्हारा शोहर तुमसे मिलने आएगा, सो तुमने तैयार रहना है। मैं भी खुश हो गई। जिससे मेरी शादी हुई थी वो मुझे देख तो ले। मैंने अपने आप को खूब सजाया था, पर मैं थी तो बच्ची ही, मुझ में वक्त से पहले अकल आ चुकी थी। मैं तैयार होकर बैठी थी, तभी दरवाजा खुला और मेरा शोहर जब मेरे सामने आया तो मैं दंग रह गई। वो तो मेरे जैसा ही नौजवान था। उसकी उम्र तकरीबन 18 साल होगी। उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। नवाब सलीम आपका नाम है? मैंने पूछा तो वो हंस पड़ा।
हाँ जी, मेरा नाम है और तुम मेरी बीवी हो। मुझे तुम पर फख्र है। तुम बहुत ही आला खानदान की लड़की हो। मुझे अपनी नस्ल के लिए तुम जैसी लड़की की जरूरत थी। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। फिर उसने जो बातें की वो तो मैं सुनती ही रह गई। वो बोला कि हम कुछ साल बाद ही शादी कर सकते थे, मगर तुम्हारे गांव का चौधरी तुम्हारा दुश्मन बन गया था। उसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया था, इसलिए ये शादी बड़ी मजबूरी में करना पड़ी है। हम नवाब लोग हैं और वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। मैं उसे ऐसा सीधा करूंगा कि वो ये गांव ही छोड़कर भाग जाएगा। मेरे शोहर ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं उस बात पर कायल हो गई कि मेरी शादी कम उम्री में हुई तो अच्छा हुआ है। मुझे जिंदगी देखने का मौका मिलेगा और मैं अपने शोहर के साथ बड़ी होंगी। उस शख्स के साथ जिसके साथ मुझे जिंदगी गुजारनी है, मैं उसी के साथ रहूंगी तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। फिर उसने मुझे जो बात बताई, मुझे थोड़ी परेशानी भी हुई थी, पर मैं खामोश रही। वो बोला कि तुम अपने खानदान के बारे में जानती हो क्या? मुझे अपने खानदान के बारे में कुछ पता नहीं था। तब वो बोला, तुम्हारा ताल्लुक भी एक अच्छे खानदान से है, बस हालात ऐसे बन गए कि तुम लोग झोपड़ी में रहने पर मजबूर हो गए थे। असल में तुम्हारे बाप ने अपनी पसंद से एक गरीब लड़की से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से तुम्हारे दादा ने उन्हें घर से निकाल दिया था और अपनी सारी जायदाद से आग कर दिया था। और दूसरी बात ये, और मैंने तुमसे पसंद की शादी की है। मैंने एक बार तुम्हें देखा तो पहली नजर में ही तुम्हें दिल दे बैठा था। फिर जब तुम्हारे बाप से रिश्ते की बात की तो उन्होंने बताया, अभी तुम्हारी उम्र 11 साल है, मगर तुम देखने में 18 की लगती हो। उन्होंने बताया कि ये चीज उन्हें विरासत में मिली है। उनके खानदान की बहुत सी लड़कियां कम उम्र में ही जवान हो जाती थी, फिर मजबूरन उनकी शादी जल्दी करना पड़ती थी। और ये भी बताया कि अलियास तुम पर बुरी नजर रखता है, वो किसी भी वक्त तुम्हें उठाकर ले जाता। अब तुमसे शादी करना भी मेरी मजबूरी बन गई थी, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा था। मेरे शोहर ने मुझसे कोई बात भी नहीं छुपाई थी। आज मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और इस 65 साल चौधरी अलियास को मेरे शोहर ने ऐसा सीधा किया कि वो अपनी सारी जमीनें बेचकर वहाँ से दूर चला गया था। अब सब कुछ ठीक हो गया है और मैं अपने शोहर के साथ हंसी खुशी रह रही हूँ।